ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری، درخت گر گئے، گاڑیاں پھنس گئیں، درجنوں افراد ریسکیو۔ کوئٹہ میں خون جما دینے والی سردی، پارہ -8 تک گر گیا۔ مری میں برفباری کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ مظفر آباد میں 2011 کے بعد پہلی مرتبہ برفباری۔ میران شاہ میں بھی کئی سال بعد برفباری۔ بٹگرام 4 فٹ اور پاڑا چنار میں 2.5 فٹ برفباری ریکارڈ۔ کوہستان میں بھی شدید برفباری، لوگ گھروں میں محصور۔ مقامی انتظامیہ نظام زندگی رواں دواں رکھنے کے لیے بھرپور سرگرم عمل۔ لوئر چترال کے علاقے ڈومیل میں مکان پر برفانی تودہ گرنے سے 9 افراد جاں بحق، ایک کم سن بچہ معجزانہ طور پر محفوظ۔ برفانی تودہ گرنے سے مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ لاواحقین سے دلی تعزیت، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ متعلقہ اداروں کو متاثرہ علاقوں میں امدادی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ ملکہ کوہسار، مری اور گلیات میں طوفانی برفباری، 3 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ ملکہ کوہسار کی رابطہ سڑکیں بند، مرکزی شاہراہوں پر برفباری کے باعث سیاحوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ مال روڈ پر سیاحوں کا رش۔ مری انتظامیہ کی شہر میں مزید سیاحوں کے داخلے پر پابندی۔ گلڈنہ، بانسٹرا گلی، لوئر ٹوپا میں ٹریفک جام۔ 17 میل ٹول پلازا سے صرف مقامی افراد کو گاڑیوں کو ہی جانے کی اجازت۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں کئی فٹ برف باری۔ گلیات، نتھیا گلی، ایوبیا، کاخان، ناران میں 3 سے 4 فٹ تک برف باری۔ اپر کوہستان میں برف باری اور لینڈ سلائڈنگ سے شاہراہ کراکورم مختلف مقامات پر بند۔ نظام میں زندگی درم بھرم۔ شدید سردی اور برف کے باعث ایبٹ آباد سے مری جانے والی مرکزی سڑک تاحال نہ کھل سکی۔ گلیات کے مختلف دیہاتی رابطہ سڑکیں بھی بند۔ انتظامیہ امدادی کاموں میں مصروف، سڑکوں کی بحالی کا کام جاری۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش اور برفباری، سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ گلگت بلتستان اور دیامر استور ڈویژن کے اضلاع میں برفباری سے معمولات زندگی متاثر، بالائی علاقوں سے رابطہ منقطع، شاہراہ استور، شاہراہ چلم اور شاہراہ شونٹر بند۔ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور دیگر متعلقہ ادارے سڑکوں کی بحالی کے لیے کوشاں، مسافروں کے دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ مری، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں شدید برف باری کے دوران پاک فوج کا بھرپور ریسکیو اور بحالی آپریشن۔ سوات، کالام، کرم، مومن، یوب اور مری میں برف باری میں پھنسے شہریوں اور سیاحوں کی پھنسی گاڑیاں محفوظ مقامات پر منتقل۔ سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال۔ امدادی کارروائیوں کے بعد کالام میں مٹلتان بازار کو شہریوں اور سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یوب کے مقام پر درہ علاؤالدین کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ پاک فوج کے جوان سخت موسمی حالات میں قوم کی خدمت پر مامور۔ کل رات سے منگل تک مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری متوقع۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید برفباری کا امکان۔ مری، گلیات، ناران، استور اور اسکردو میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ۔ سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان سفارتی پاسپورٹس پر ویزا ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط۔ پاکستان کا افریقہ ممالک خصوصاً صومالیہ سے تعلقات مضبوط بنانے کا عزم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے صومالی وزیر داخلہ علی یوسف کی ملاقات۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انسداد منشیات میں تعاون پر بات چیت۔ نادرا کی جانب سے صومالیہ کو شناختی نظام اور پولیس ٹریننگ میں معاونت کی پیشکش۔ پاکستان صومالیہ کے ساتھ قریبی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں شراکت داری بڑھانا چاہتا ہے: صدر مملکت۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے معاشی بہتری کے لیے کی جانے والی کوششوں کا IMF نے بھی اعتراف کر لیا۔ وزیر اعظم
پاکستان شہباز شریف نے جب بھی کسی کام کا بیڑا اٹھایا تو پھر وہ کر کے دکھایا۔ وزیر اعظم پاکستان ملک کی بہتری کے لیے مشکل مگر ضروری اصلاحات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارا پاکستان کے ساتھ کافی عرصے سے نہایت تعمیری اور مثبت رابطہ رہا ہے۔ حکومتی کوششوں کے نتیجے میں زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، افراط زر اور شرح سود میں کمی آ رہی ہے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹولینا جارجیا کی ڈیووس عالمی اقتصادی فورم میں میڈیا سے گفتگو۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے تعمیراتی صنعت کی عالمی نمائش 19ویں بلڈ ایشیا انٹرنیشنل کا کراچی میں شاندار آغاز۔ پاکستان کو صنعتی ترقی، جدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے ذریعے خطے میں نمایاں مقام حاصل۔ افتتاحی تقریب میں عمان اور ایران کے کونسل جنرل سمیت روسی نمائندے، چینی وفود اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی شرکت۔ پراپ ٹیک کانفرنس میں ماہرین نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، سمارٹ اور پائیدار تعمیراتی ٹیکنالوجی پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کو تاروں کی وجہ سے شارٹ سرکٹ اور جان لیوا حادثات سے پاک کرنے کے لیے عملی اقدام۔ شارٹ سرکٹ، کرنٹ اور آگ لگنے کے واقعات کے خاتمے کے لیے ماسٹر پلان تیار۔ پہلے مرحلے میں لاہور کو بجلی کی لٹکتی بے ہنگم اور خطرناک تاروں سے نجات دلائی جائے گی۔ پورے لاہور کو 3 زون میں تقسیم کر کے بجلی تار انڈر گراؤنڈ کرنے کی تجویز کا جائزہ۔ کراچی گل پلازہ جیسی سانحات سے بچنا چاہتے ہیں، عوام کا تحفظ ذمہ داری ہے۔ بارش کے دوران بجلی کے تار حادثات کا سبب بن رہے ہیں، مریم نواز شریف۔ پی ٹی آئی نے امن و امان خراب کرنے کے لیے 8 فروری کو احتجاج کی کال دی ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال کو ہر صورت عوام رد کر دیں گے۔ اب اگر ملک جام کرنے کی کوشش کی گئی تو نتائج مختلف ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو اب انتشار پسند سیاستدانوں کے خلاف فیصلہ کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ ملک کے تمام دیگر صوبوں میں ترقی ہو رہی ہے۔ کوآرڈینیٹر اطلاعات برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی خان کا بیان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد امن و ترقی کے لیے تعلیمی اہمیت کو فروغ دینا ہے۔ پائیدار ترقی کی منازل تعلیم کی راہ پر گامزن ہو کر ہی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کا مستقبل براہ راست نوجوان نسل اور تعلیم سے وابستہ۔ حکومت دانش اسکول اور لیپ ٹاپ اسکیم اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے تعلیم کے فروغ کے لیے پرعزم۔ نوجوانوں کو ایک ہنرمند، روشن خیال اور مضبوط پاکستان کی تعمیر میں شراکت دار بنائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تعلیم کے عالمی دن پر پیغام۔ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کا موقع تلاش کر رہا ہے۔ حملے سے خطہ عدم استحکام سے دوچار ہو جائے گا۔ امید ہے اسرائیل حملے سے گریز کرے گا، لیکن قوی امکان ہے کہ اسرائیل حملہ کرے گا۔ مشکل وقت میں ایران ترکی کو اپنا دوست پائے گا۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کا ترک میڈیا کو انٹرویو۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا انسانی حقوق کونسل میں ایران مخالف قرارداد کے خلاف ووٹ دینے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں پاکستان کا اصولی کردار قابل تحسین ہے۔ ایران کے خلاف غیر منصفانہ قرارداد پر ووٹنگ کا مطالبہ کر کے جرأت مندانہ اقدام کیا۔ پاکستان کی حمایت انصاف، انسانی حقوق، کثیر جہتی نظام اور قومی خود مختاری سے وابستگی کی عکاس ہے۔ ایران اس اصولی اور مستقل حمایت کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے یاد رکھے گا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا ایکس پر پیغام۔ افغان مہاجرین یورپ کے لیے سیکیورٹی رسک، سویڈن کا یورپی ممالک سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ۔ غیر قانونی سرگرمیاں اور جرائم یورپی ممالک کے لیے سنگین سیکیورٹی خطرہ۔ جرمنی، ایران اور ترکی کے بعد سویڈن کا بھی افغان مہاجرین کو ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم جاری۔ جرائم میں ملوث افغان مہاجرین کو ہر قیمت پر ملک بدر کیا جائے گا۔ سویڈش وزیر برائے امیگریشن۔ نااہل مودی سرکار کی عوام میں خوف پھیلا کر بحران چھپانے کی سازش بے نقاب۔
भारत में फ़ज़ाई सलामती और कौमी एयरलाइन शदीद माली बहरान का शिकार। मोदी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए खौफ का खेल, बम धमकियों का सैलाब। एक ही रूट पर बार बार अलर्ट्स ने भारतीय एविएशन की कलई खोल दी। जून का हौलनाक ड्रीम लाइन्स हादसा, 240 से ज़ायद हलाकतें, भारतीय एविएशन के लिए सहबाब। एयर इंडिया को $1.6 बिलियन के तारीखी खसारे का सामना, ब्लूमबर्ग का धमाका खेज इंकशाफ। फुटबॉल के मैदान से भी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वादा और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नई क़यादत पर एतमाद। फीफा सदर का जल्द पाकिस्तान दौरे का ऐलान। पाकिस्तान फुटबॉल खेलने वाला अजीम मुल्क है। फीफा की कोशिश है कि बासलाहियत खिलाड़ियों को मौका देकर पाकिस्तान को एशिया की टॉप फुटबॉल टीम बनाया जाए। फीफा सदर जियानी इन्फेंटिनो। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीमें बुलावा में मध्य मुकाबिल, जापान और तंजानिया की अंडर 19 टीमें विंडोक में आमने सामने। सुपर सिक्सेस मुकाबले कल से होंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम का इंग्लिश काउंटी क्लब डर्बीशायर के साथ मुआहिदा। सुफियान मुकीम वाइटलिटी T20 ब्लास्ट 2026 में डर्बीशायर फाल्कन्स की नुमाइंदगी करेंगे। सुफियान मुकीम टूर्नामेंट के पहले मरहले में एक्शन में नजर आएंगे। सुफियान मुकीम फाल्कन्स के लिए 6 मैचेस खेलने के लिए दस्तयाब होंगे। इतालवी फुटबॉल लीग सीरी ए लीग लीडर्स इंटर की पिज़ा को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। पॉइंट्स टेबल पर इंटर की टीम 52 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। पिज़ा की टीम को रिलेगेशन का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमैरा राना। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते चले कि मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो गया है। लोअर चित्राल के दमपल में नमेल में घर पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने चित्राल में बर्फानी तोदा गिरने से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चित्राल में बर्फानी तोदा गिरने से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक पेशगी तैयारी और नुकसानात कम करना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने वफाकी सूबाई और मकामी इदारों को हिदायत की कि मुतासरा इलाकों में इमदादी इकदाम तेज करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वफाकी रेस्क्यू और रिलीफ इदारों को सूबाई हुकूमत के साथ ताउन और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन NDMA को मुतासरीन की महफूज मकामात पर फौरी मुंतकली के हवाले से इकदामात करने की हिदायत की और कहा कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद की सूरत हाल की निगरानी और मुतल्लिका इदारों से राब्ता रखा जाए ताकि किसी भी मुमकिना सूरत हाल से निपटा जा सके। मरी और गलियात में बर्फानी तूफान से अब तक 3 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी है। मरी की इंतजामिया ने मजीद सयाहों के शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। सवात, कालाम, मोहम्मद, जोब और मरी में पाक फौज और मकामी इंतजामिया का भरपूर रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन जारी है। बर्फबारी में फंसे शहरियों और सयाहों की गाड़ियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बर्फ में फंसे खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके उन्हें गर्म कपड़े, खुराक और दीगर अशिया फ्राहम की जा रही हैं। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बलोचिस्तान में खारान और नौशकी जैसे इजला के बास मकामात पर भी बरसों बाद बर्फबारी हुई है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इस गैर मुतवक्के बर्फबारी की बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट
رپورٹ میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ پاکستان کو رواں برس دہائیوں کے بعد اپنے سخت ترین سرد موسم کا سامنا رہے گا، اور اس کی بنیادی وجہ لالینا نامی موسمیاتی پیٹرن کو قرار دیا گیا تھا۔ اس غیر معمولی سردی سے وہ گھرانے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے جو گزشتہ سال سیلاب سے پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقے میں زندگی گزارنے والے خاندانوں کے لیے سردی کا مقابلہ مزید دشوار ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات تیز بارش اور شدید برف باری کے باعث ناران، کاغان، دیر، سوات، کالام، چترال، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، شانگلہ، استور، ہنزا، سکردو، مری، گلیات، وادی نیلم، باغ، پونچھ، حویلی اور راولا کوٹ میں سڑکوں کے بند ہونے اور پھسلن کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں خلل کا اندیشہ ہے۔ تیز بارش اور تیز برف باری کے باعث بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کی رات سے منگل تک ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ 25 جنوری کو مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا، جس سے بلوچستان اور بالائی سندھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید برف باری کا امکان ہے۔ اس موقع پر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ضلع کرم میں شدید برف باری سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج نے مقامی آبادی کی امداد اور معمولات زندگی کی بحالی کے لیے ریلیف آپریشن شروع کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بھاری مشینری سے مناتو گاؤں سے مقامی کالج تک برف سے ڈھکے راستے کو صاف کیا اور مناتو صدر روڈ پر ٹریفک پر روانی بحال کر دی گئی۔ اس دوران برف میں پھنسی گاڑیوں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے علاقے میں اہم رابطوں کی بحالی ممکن ہوئی۔ مقامی آبادی نے سخت موسمی حالات میں مشکلات کم کرنے پر فورسز کی کاوشوں کو سراہا۔ پاک فوج مقامی آبادی کا خیال رکھتے ہوئے امن اور معمولات زندگی کی بحالی کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ بلوچستان میں شدید برف باری کے دوران پاک فوج کا ریسکیو بحالی کا آپریشن یوم میں شدید برف باری کے دوران امدادی کارروائیوں میں مصروف رہے۔ شدید برف باری کے باعث پھنسے ہوئے مسافروں کو نکالنے کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن اور پھنسی ہوئی گاڑیوں کو نکالنے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ برف باری میں پھنسے افراد کے لیے ایف سی بلوچستان نارتھ کے مختلف مقامات پر ٹریفک کنٹرول اور امدادی سرگرمیاں مؤثر انداز میں جاری ہیں۔ پاک فوج نے یوب کے مقام علاؤالدین پاس کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا ہے۔ پاک فوج کے جوان سخت موسمی حالات کے باوجود پھنسے ہوئے شہریوں اور گاڑیوں کو محفوظ طریقے سے نکالنے میں بھرپور مدد فراہم کر رہے ہیں۔ مانسہرہ میں بالائی اور میدانی علاقوں میں رات گئے بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہا، جو الصبح تھم گیا۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی اے اور این ایچ اے نے شاہراہ کاغان کو کھولنے کے لیے رات بھر آپریشن جاری رکھا۔ ایم این اے جے روڈ کو آج کاغان تک کھولنے کی تیاری ہے، جبکہ شوگراں روڈ پر بھی سڑک کھولنے کا کام جاری ہے۔ شوگراں میں 1 فٹ، کاغان میں 1.5 فٹ، ناران میں 3 فٹ اور چھتر پلین میں 10 انچ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ نے مختلف مقامات پر مشینری اور سٹاف تعینات کر کے سڑکیں کھولنے اور سیاحوں کے لیے راستے محفوظ بنانے کے اقدامات کیے ہیں۔ ملکہ کوثر مری میں حالیہ شدید برفباری کے دوران پنجاب حکومت کے مثالی انتظامات دیکھنے میں آئے۔ صوبائی وزیر مواصلات اور ضلعی انتظامیہ مسلسل متحرک رہی، جس کے باعث سیاحوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے برف باری سے متاثرہ سیاحتی علاقوں میں انتظامات نہ ہونے کے برابر نظر آئے، جہاں سڑکوں کی بندش، پھسلن اور رہنمائی کے فقدان کے باعث سیاح شدید پریشانی کا شکار رہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر وقار شاہ۔ ہونے والی شدید برف باری کے دوران ملکہ کوثر مری میں مثالی انتظامات دیکھنے میں آئے۔ وزیر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر صوبائی وزیر مواصلات سویب برتھ اور ممبر پنجاب اسمبلی بلال جامین از خود مری میں موجود رہے۔ ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ سڑکوں کی بروقت بحالی، ٹریفک کی روانی اور سیاحوں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ سیاحوں کو نہ صرف محفوظ سفر میسر آیا بلکہ رہائش، آمد رفت، رہنمائی انتظامات بھی نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ آپ کو ہم شاباش دیتے ہیں کہ آپ ایز منسٹر سی این ڈبلیو مری میں موجود ہیں۔ سپرویژن میں، اپنی نگرانی میں آپ جو کلیئرنس آپریشن ہے سنو فال کے ساتھ ساتھ آپ اس کو لیڈ کریں اور ٹورسٹ کے لیے اور لوکلز کے لیے آسانی کا باعث بنے، تو شاباش اینڈ ویری ویل ڈن۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے علاقے
गलियात, नथिया गली, अयूबिया, खानसपुर में इंतजामात ना होने के बराबर रहे, जहां शदीद बर्फबारी के बायस सयाह घंटों सड़क पर फंसे रहे और जमीनी रास्ते कई घंटे बंद रहे। सयाहों ने बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया और पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। यासिर कारशाह, PTV न्यूज़, मरी। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, ताहम मुतअद्दिद शहरात अब भी बंद हैं। वादी नीलम, जहलम और पूंछ के बाला इलाकों में कई फुट बर्फ पड़ चुकी है। आज़ाद कश्मीर जिला हवेली और मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके पीर चनासी में बर्फानी तूफान की जद में आकर फंस जाने वाले सैकड़ों मकामी अफराद और सयाहों का रेस्क्यू 1122 की जानिब से बाहिफाजत निकाल कर उनके घरों को रवाना कर दिया गया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से 4 मकानात मुतासर हुए हैं, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। रवां हफ्ते मजीद बारिशों और बर्फबारी लगी इम्कान के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर शहरियों बिलखुसूस सयाहों को बारिशों और बर्फबारी के दौरान पहाड़ी इलाकों में सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत की गई है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान और द्यामिर स्तौर डिवीजन के अजला में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होकर रहे हैं। बालाई इलाकों से राबता मुनक़ता हो गया है। शाहराह अस्तौर, शाहराह चिलम और शाहराह शौंटर बंद हो गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर मुतल्लिका इदारे सड़कों की बहाली के लिए कोशां हैं। मुसाफिरों को दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई हैं। एबटाबाद के सियाहती मकामात गलियात, नथिया गली और ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गलियात में 3 फुट जबकि ठंडियानी में 4 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी और महकमा CNW की नाअहली के बायस एबटाबाद से मरी और ठंडियानी जाने वाली मरकजी शाहराह से बर्फ नहीं हटाई जा सकी। महकमा गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से गलियात के टाउन्स की सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। एबटाबाद से गलियात, ठंडियानी, बकोट की तमाम राबता सड़कें बंद हैं, जबकि मवासलात का भी निज़ाम दरम भरम हो गया है। नाकिस इंतजामात ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बैड गवर्नेंस का पोल खोल दिया। संजावी और गिरदोनवा में गुज़श्ता रोज़ बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसके बायस मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो गए हैं। शहरी बड़ी तादाद में घरों तक महदूद हो गए हैं और कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। पहाड़ी इलाकों और संजावी शहर के दरमियान राबता मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका, जबकि कलीशीरी, नशपा और बटे तेर समेत मुतअद्दिद इलाकों की सड़कें बंद हैं। इसकी वजह से देहाती इलाकों के मकीनों को रोज़मर्रा ज़रूरियात और इलाज मालजे में मुश्किलात का सामना है। आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने के खतरे का अलर्ट जारी करते हुए 29 जनवरी तक मौसम के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कों पर ट्रैफिक के रवानी मुतासिर होने का खदशा है। आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह शदीद धुंध का इम्कान है। मुसाफिरों से बर्फबारी और धुंध के दौरान को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी और ज़रूरी मशीनरी और वसाइल की बर वक्त दस्तियाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। खबरनामे में शामिल करते हैं दीगर खबरें। अवान सदर में पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म करने के माहदे पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 2 तरफ़ा रवाबित के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया गया। माहदे पर सोमालिया की वज़ारत ख़ारजा और बैनुल अक़वामी ताउन के मुस्तक़िल सेक्रेटरी हमज़ा अदन और पाकिस्तान की तरफ से वज़ारत दाखिला और इंसदाद मनशियात के खुसूसी सेक्रेटरी दाऊद मोहम्मद ने दस्तखत किए। इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने मुलाकात के दौरान कहा कि अफ्रीका आलमी जोग्राफियाई सियासत में एक अहम खित्ता है और पाकिस्तान सोमालिया समेत अफ्रीकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहता है। पाकिस्तान सोमालिया के साथ रवाबित को कदर की निगाह से देखता है और मुश्तरका मफादात के शोबों में करीबी ताउन का हामी है।
صدر مملکت نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان سرحد پر جرائم اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کے لیے پرعزم ہے۔ ملاقات میں وسیع تر جغرافیائی سیاسی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صومالیہ کے وزیر داخلہ نے اپنے دورے کے دوران حکومت پاکستان بالخصوص وزارت داخلہ کی جانب سے دی گئی پرتپاک مہمان نوازی پر اظہار تشکر کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستانی ہم منصب سید محسن رضا نقوی کی دعوت پر پاکستان آئے ہیں۔ صومالیہ کے وزیر داخلہ علی یوسف نے صومالیہ کے صدر کی جانب سے صدر آصف علی زرداری کے نام ایک خط بھی پیش کیا، جس میں نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے قانون نافذ کرنے اور فوجداری انصاف کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے معاشی بہتری کے لیے کی جانے والی کوششوں کا IMF نے بھی اعتراف کر لیا۔ ڈیووس عالمی اقتصادی فورم میں میڈیا سے گفتگو میں IMF کی MD کرسٹلینا جارجیوا نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے جب بھی کسی کام کا ذمہ اٹھایا تو پھر وہ کر کے دکھایا۔ وہ پاکستان ملک کی بہتری کے لیے مشکل مگر ضروری اصلاحات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ IMF MD کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت نے سنجیدگی سے اصلاحات کو اپنایا اور اس کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ بجٹ کے کڑے نظم و ضبط کے نتیجے میں عوام کی بہتری کے لیے وسائل میسر ہو رہے ہیں۔ ہمارا پاکستان کے ساتھ کافی عرصے سے نہایت تعمیری اور مثبت رابطہ رہا ہے۔ مبصرین کے نزدیک IMF سربراہ کی توثیق سے ثابت ہوا کہ پاکستان درست معاشی راستے پر گامزن ہے۔ 19ویں بلڈ ایشیا انٹرنیشنل نمائش 2026 کا کراچی میں شاندار افتتاح ہو گیا۔ افتتاحی تقریب میں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے وائس چیئرمین، عمان اور ایران کے کونسل جنرل، روسی نمائندے، چینی وفود اور ملکی و غیر ملکی سرمایہ کار شریک ہوئے۔ شاندار ایونٹ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور SIFC کی معاونت سے منعقد ہو رہا ہے۔ پہلے دن 11,000 سے زیادہ وفود نے شرکت کی، جن میں ڈیولپرز، کانٹریکٹرز، آرکیٹیکٹس، انجینئرز اور پالیسی ساز شامل تھے۔ پراپ ٹیک کانفرنس میں ماہرین نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، سمارٹ اور پائیدار تعمیراتی حل پر تبادلہ خیال کیا۔ آؤٹر مشینری ڈسپلے میں بھاری مشینری اور جدید آلات کی نمائش اور لائیو ڈیموز نے وفود کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ منتظمین کے مطابق بلڈ ایشیا ٹیکنالوجی ٹرانسفر جدت اور بین الاقوامی تعاون کے لیے پاکستان میں اہم پلیٹ فارم ثابت ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، جس کے بعد پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا۔ جنگ کے دوران ہمارے سائبر ونگ نے اہم کردار ادا کیا۔ راولپنڈی کے نجی کالج میں منعقدہ نمائش سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ تعلیم کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ مصنوعی ذہانت جدید دور کی سب سے اہم ٹیکنالوجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آج ہر شعبے میں آگے بڑھ رہا ہے۔ نوجوانوں کو بھی ترقی کے مساوی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم اپنے جوانوں کی قربانیوں کی بدولت محفوظ ہیں۔ تعلیم کے ساتھ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کو سفری سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت فلسطین کی عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل وابستگی کی عکاس ہے۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عالمی توجہ کا مرکز رہے، جو پاکستان کے عالمی منظرنامے پر بڑھتی اہمیت کا واضح مظہر ہے۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں ذیشان علی بھٹی اس رپورٹ میں۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر پاکستان اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے 20 ملکوں نے غزہ بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کیے۔ غزہ بورڈ آف پیس کے قیام کی تجویز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی تھی۔ یہ تجویز غزہ میں جنگ کے خاتمے اور اس کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے تناظر میں پیش کی گئی تھی، جو سلامتی کونسل کی قرارداد سے بھی منسلک ہے، جس کا مقصد عالمی امن و استحکام کا فروغ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مظلوم فلسطینی عوام کے حق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور پائیدار امن کے قیام، انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی اور تعمیر نو پاکستان کی اولین ترجیح رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امریکی صدر نے غزہ میں امن کے لیے 20 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تو پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب سمیت کئی دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ اس اقدام کا خیر مقدم کیا۔ ڈیووس میں جب اس تاریخی چارٹر پر دستخط ہوئے تو پاکستان دستخط کرنے والے چند ممالک میں شامل تھا۔ Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan.
आलमी इक्तिसादी फोरम के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरमियान होने वाली मुलाकात में फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अवाम के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल, असूली और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दिली शुक्रिया अदा किया। मुज़ाकरात, मुकालमे और ताउन के फ़रोग़ पर होने वाले आलमी इक्तिसादी फोरम के 56वें इजलास में जहाँ 65 से ज़ायद मुल्कों के सरबराहान, 850 से ज़ायद कंपनियों के नुमाइंदे और 3000 मंदूबीन ने शिरकत की, वहाँ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी इक्तिसादी फोरम में शरीक रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने रहे। दोनों की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें हुईं। इन गैर रस्मी मुलाकातों में मुस्कुराहटों के तबादले और गर्म जोशी देखने में आई। डेवोस में आलमी मालियाती फंड की MD से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी और इदाराजाती इस्लाहात की पेशरफ्त से आगाह किया। IMF की MD ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। आलमी इक्तिसादी फोरम के मौका पर कारोबारी शख्सियात के साथ होने वाली नशिस्त में वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि ज़राअत, सनत, कानकनी, AI, निजकारी और IT के शोबों में पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। शफाफियत हमारा अवलीन नस्बुल ऐन है। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुकम्मल हम आहंग हैं। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने की तवक्को है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और सर्द हवाएं चलने का भी इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश और शदीद बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो लह कल्लात -11, अस्तोर -9, कालाम, पड़ा चनार -8, मालम जब्बा -6, गोपिस, दीर, मरी और रावलाकोट में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं, आज मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा 266 इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। दूसरे नंबर पर लाहौर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू 197 पर रहा। चौथे नंबर पर बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका 191 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूबे में गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान महकमा सेहत में खामोश मगर मौसम इनकलाब बर्पा किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर तकरीबन 3000 डॉक्टर्स की भर्ती, जबकि सूबे भर में 164 बेसिक हेल्थ यूनिट्स फाल कर दिए गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि दूर दराज और पसमानदा इलाकों के अवाम को अब उनके करीब बुनियादी सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ रही हैं। महकमा सेहत की सहूलियात के दायराकार को मज़ीद वसी किया जाएगा। नाज़रीन, गुल प्लाजा सानहा एक ऐसी तल्ख और तकलीफ दह हकीकत है जिस पर हर आंख अश्कबार है। जाए वक़ुआ पर रेस्क्यू का काम ताहाल जारी है। मज़ीद तफसील के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा नौरीन आसिफ। जी नौरीन आसिफ, अब तक की क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल प्लाजा के सामने। ये वो बिल्डिंग है जिसको आतिश ज़दगी ने ऐसा लपेट में लिया कि एक बड़ा सानिया जो है हमें देखने को मिला। आज 8 रोज़ हो चुके हैं इस सानिया को और अभी भी जो लाशें हैं वो तलाश करने का काम जारी है। तकरीबन 82 जो हैं वो अफराद लापता थे, जिनमें से 71 लाशें जो हैं वो मिल चुकी हैं और 11 अभी भी लापता हैं। ये वो अलमनाक हादसा है, सानिया है, जिसने सारी फ़िज़ा को सोगवार किया हुआ है। अभी भी 11 अफराद की जो लाशें हैं वो तलाश करने का काम जारी है। रेस्क्यू का अमला जो है वो मलबा उठा रहा है और सर्चिंग
मीटिंग चल रही है और अमले का यही कहना है कि जो जितने भी लोग हैं वो उससे थोड़ा दूर रहें। एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि लोग करीब ना आएँ, किसी भी हादसे की सूरत में इससे बचा जा सके। और मुस्तकिल यहाँ पर जो है वो काम जारी है। लोग अपने प्यारों की तलाश में हैं कि जो बाकी जो लोग हैं जिनको अभी तक कुछ पता नहीं चला कि उनके प्यारे इस बिल्डिंग में जो है वो कहाँ गुम हो गए, वो उनकी तलाश में अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं और इंतज़ार करें कि उनके प्यारों को का पता लग सके। जी। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के मुज़ाकरातकारों का सैफरी इजलास अबूधाबी में आज दूसरे रोज़ भी हो रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की मेज़बानी में 2 रोज़ा मुज़ाकरात में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर गौर किया गया। पहले रोज़ के इख्तिताम पर यूक्रेन के चीफ मुज़ाकरातकार रुस्तम उमरॉफ ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मुज़ाकरात में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर तवज्जो मरकूज़ की गई। मुज़ाकरात का मकसद खित्ते में बावकार और देरपा अमन का क़याम है। ईरान पर अमरीकी हमले का खदशा बढ़ गया है। यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। एयर फ्रांस, लफ्थांसा, एयर कनाडा और KLM नीदरलैंड्स की जानिब से जारी एक एलामिया में कहा गया है कि इतवार तक इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें ऑपरेट नहीं करेंगी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये परवाज़ें ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना फ़ौजी तसादुम की वजह से मनसूख की गई हैं। बरतानिया ने ईरान और अमरीका की कशीदगी के बायस कतर में लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी फ़ज़ाइया ने कतर में 4 टाइफून लड़ाका तैयारे तैनात किए हैं। बरतानवी वज़ारत दिफा ने बताया कि कतर में लड़ाका तैयारे दिफाई मकसद के तहत भेजे गए हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने अफगानिस्तान जंग में नेटो अफवाज के बारे में अमरीकी सदर के बयानात की सख्त मज़म्मत करते हुए ट्रंप का बयान अफसोसनाक और तौहीन आमेज़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन बयानात से बरतानिया में शदीद दुख और तकलीफ का एहसास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को तौहीन आमेज़ बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में हलाक होने वाले बरतानवी मुसल्लह अफवाज के 457 एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि बरतानिया उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगा। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने कहा है कि इसराइल अब भी ईरान पर हमला करने का मौका तलाश कर रहा है। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि इस तरह का इक़दाम खित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दोचार कर देगा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि मुझे उम्मीद है कि इसराइली हुकाम एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में है। उन्होंने कहा कि मैंने ईरानी हुकाम को इसराइली हमले के खदशे से पेशगी आगाह कर दिया था। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान में जो कुछ होता है इसका असर हम पर पड़ता है, इसीलिए हम इस मामले को करीब से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती का ख्याल रखता है और ईरान में फ़ौजी मुदाखलत का मुखालिफ है। आलमी जराइद ने नाअहल मोदी सरकार की अवाम में खौफ फैलाकर बहरान छुपाने की साजिश बेनकाब कर दी है। भारत में इस वक्त फ़ज़ाई सलामती और कौमी एयरलाइन की माली हालत बहरान की तस्वीर पेश कर रही है। नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए खौफ और बम धमकियों का बयान या बतदरीज मुस्तकिल हिकमत अमली बनता जा रहा है। ANI के मुताबिक दिल्ली से पुणे के लिए रोज़ाना इंडिगो प्रवास को 5 दिनों में दूसरी बार बम की धमकी मौसूल हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बम धमकी की इत्तला पर एप्टन कंट्रोल को दी। तैयारा आइसोलेशन में मुंतकिल किया गया। ब्लूमबर्ग को दी गई मीडिया की प्रोपेगेंडा की असल कहानी मंजरेआम पर ले आया। एयर इंडिया को मोहलिक हादसे के बाद रिकॉर्ड $1.6 बिलियन के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जून में ड्रीम लाइनर हादसे में 240 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नुकसानात में मज़ीद इजाफा पाकिस्तान के भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद करने के बायस हुआ। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से एयरलाइंस को यूरोप और अमेरिका के लिए तवील और महंगे रास्ते इख्तियार करने पड़े। माहिरीन के मुताबिक बार बार बम धमकियाँ अवाम की तवज्जो हुकूमती नाकामियों से हटाने की मुनज़्ज़म कोशिश है। एक ही रूट्स पर धमकियाँ भारतीय फ़ज़ाई सिक्योरिटी की कमज़ोरी ज़ाहिर करती हैं। एयर इंडिया का खसारा सियासी मुदाखलत और नाक़िस इंतज़ाम का नतीजा है। अफ़गान महाजरीन की गैर कानूनी सरगर्मियाँ और जराइम यूरोपीय ममालिक के लिए संगीन सिक्योरिटी ख़तरा बन गईं।
जर्मनी, ईरान और तुर्की के बाद स्वीडन ने भी अफगान मुहाजिरीन को मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। स्वीडन के वजीर बरा इमिग्रेशन का अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडन ने यूरोपीय यूनियन से अफगान मुहाजिरीन के लिए दस्तावेज़ात का मुश्तरका निज़ाम मांग लिया। स्वीडन के वजीर ने वाज़ेह कर दिया, जराइम पेशा अफगान मुहाजिरीन को यूरोप में रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जराइम में मुलव्वस अफगान मुहाजिरीन हमारी सोसाइटी का हरगिज़ हिस्सा नहीं बन सकते। जराइम में मुलव्वस अफगान मुहाजिरीन को हर कीमत पर मुल्क बदर किया जाएगा। स्वीडन के वजीर ने यूरोपीय ममालिक को अफगान मुहाजिरीन को एक जगह जमा करके चार्टर फ्लाइट्स के जरिए मुल्क बदर करने की तजवीज़ दी है। यूरोप में मुहाजिरीन के नाम पर स्मगलिंग, जिनसी तशद्दुद और मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस अफगान बाशिंदे सिक्योरिटी खतरा बन चुके हैं। रुख करते हैं एक मरतबा फिर कौमी खबरों की जानिब। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बराह रास्त नौजवान नस्ल से जुड़ा है। आलमी यौम तालीम पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि आइन के आर्टिकल 25A के तहत मुफ्त और लाजमी तालीम की ज़मानत इस बुनियादी हक़ के लिए हमारे मुश्तरका अज़्म की अक्कास है। आला तालीम तक रसाई, मुस्तहक़ तलबा की इमदाद और टेक्नोलॉजीज़ तक बेहतर रसाई जैसे इक़दामात नौजवानों को अमली मईशत में अपना किरदार अदा करने में मदद फराहम कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आला तालीम को बेहतर बनाने, तहक़ीक़ और ईजाद को फ़रोग़ देने और डिजिटल तालीम में इजाफ़े की कोशिशें बदलती हुई सोच की अक्कासी करती हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की बासलाहियत नौजवान आबादी मुल्क का कीमती असासा है। उनको तालीम और तरबियत, मयारी इस्तेदाद कार और हुनरमंदी के बेहतरीन मौक़े फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आलमी यौम तालीम पर दुनिया भर और बिलखुसूस पाकिस्तान के तालीम और तरबियत से वाबस्ता अफराद, तलबा, तालिबात, असातिज़ा, वालिदैन, मुअल्लिमीन और मुहक्किकीन को खराज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें और जिद्दत आमोज़ उमंगें निज़ाम तालीम की दुरुस्त समेत तरक्की का बाइस बनेंगी। कौम का रोशन मुस्तकबिल बच्चों की बेहतर तालीम से मुमकिन के उन्वान से इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज बराए तालिबात में खुसूसी तकरीब का हवाल बता रहे हैं इमरान मनसब खान अपनी इस रिपोर्ट में। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली खान ने कहा है कि PTI ने अमन व अमान ख़राब करने के लिए 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी है, जिसे अवाम हर सूरत रद्द करेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि सड़कें या रेलवे ट्रैक जाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सूबे में अमन व अमान को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इख्तियार वली खान ने कहा कि PTI खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है, जबकि अवाम तरक्की और मेयारी तालीम से महरूम है। इंतशार पसंद सियासत के खिलाफ अवाम को फैसला करना होगा। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज दहशत गर्दी के खिलाफ दिन रात कुर्बानियाँ दे रही है। अब अगर मुल्क जाम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। PTI की किसी शरारत को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस्तेदाद पोलियो के बारे में वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन आयशा रज़ा फ़ारूक ने कहा है कि साल 2026 की पहली कौमी इस्तेदाद पोलियो मुहिम 2 से 8 फरवरी तक मुल्क भर में शुरू की जाएगी, जिसका मकसद 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो जैसे मूज़ी मरज़ से महफूज बनाना है। इस कौमी मुहिम के दौरान 4 लाख से ज़ायद फ्रंटलाइन वर्कर्स अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे, जो शदीद मौसमी हालात, दुश्वार गुजार इलाकों और मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने के लिए काम करेंगे। गुज़श्ता बरसों के दौरान पाकिस्तान ने पोलियो के खात्मे के हवाले से नुमायां पेशरफ्त की है। साल 2024 में पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2025 में ये तादाद कम होकर 31 रह गई। ये वाज़े कमी आला मेयार की वैक्सीनेशन मुहिमात और मुअस्सर हिकमत अमली का नतीजा है। ताहम पोलियो का खतरा अब भी मौजूद है। जब तक हर बच्चा हर मुहिम में पोलियो से महफूज नहीं हो जाता, तब तक ये वायरस किसी भी वक्त दोबारा सर उठा सकता है। मामूली गफलत भी हमारी अब तक की मेहनत को मुतासर कर सकती है। इसलिए हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इस मुहिम को हर हाल में कामयाब बनाएं। पोलियो वर्कर्स से मुकम्मल ताउन करें, इन्हें अपने घरों में खुशामदीद कहें और अपने बच्चों को हर मुहिम में पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। आज हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़ियादत में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़्म है और इस मकसद के हसूल के लिए तमाम वफाकी और सूबाई इदारे मुकम्मल यकजहती के साथ काम कर रहे हैं।
आखिर में मैं वालिदैन, उलमाए किराम और कम्युनिटी रहनुमाओं और मीडिया से पुरजोर अपील करती हूँ कि वो पोलियो के खिलाफ इस कौमी जदोजहद में हमारा साथ दें, आगाही फैलाएं, मुस्बत पैगाम आम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान का हर बच्चा पोलियो से मुकम्मल महफूज रहे। आइए हम सब मिलकर इस मुहलिक वायरस को हमेशा के लिए शिकस्त दें और अपने बच्चों के लिए एक सेहतमंद पाकिस्तान को यकीनी बनाएं। जामशोरों में नेशनल हाईवे पर कार और डंपर में तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में 8 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे में सड़कों के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में पेशावर DI खान मोटरवे को सूबाई वसाइल से तामीर करने और इसे ग्रीन मोटरवे बनाने का फैसला किया गया, जबकि स्वात एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 पर सिविल वर्क 31 जनवरी से शुरू करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि मनसूबों पर किसी किस्म की ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। नई मोटरवेज़ मकामी मईशत, रोज़गार के मौक़े, तरक्याती सरगर्मियों को फ़रोग़ देंगी। सूबाई हुकूमत अवामी मफाद के मनसूबों के लिए तमाम तर वसाइल तरजीही बुनियाद पर फराहम करेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान से बल्गारिया के सफ़ीर ने लाहौर में मुलाकात की। दोनों फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और बल्गारिया के दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और इक़्तिसादी, पार्लिमानी, तालीमी और सक़ाफ़ती ताआवुन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया। स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमूर में मकालमे और अमन पर मबनी मौक़िफ़ रखता है। पार्लिमानी, सक़ाफ़ती और तालीमी वफ़ूद के तबादले से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। उन्होंने पंजाब में ज़राअत, टेक्सटाइल और IT में सरमायाकारी के वसी मौक़े का जिक्र करते हुए बल्गारिया के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। बल्गारिया के सफ़ीर ने भी पाकिस्तान और बल्गारिया के अवामी रवाबित और सरमायाकारी में दिलचस्पी को खुशाइंद करार दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि आलूदगी पर मौसर कंट्रोल के नतीजे में AQI में नुमायां बेहतरी आई है। फ़ज़ाई आलूदगी पर मौसर कंट्रोल के हवाले से तमाम मुताल्लिक़ा इदारे मुतहर्रिक हैं। यही वजह है कि लाहौर का AQI 156 रिकॉर्ड किया गया है। भट्टों की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली से बेहतरी आई है। अवाम के ताउन, मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान, सख्त इन्फोर्समेंट और मुसलसल मॉनिटरिंग के ज़रिए हुकूमत की कोशिश है कि पूरा साल इसे AQI को बरकरार रखा जा सके। स्मॉग कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल है। जदीद ड्रोन और CCTV की मदद से कड़ी निगरानी जारी है। वफाकी टैक्स मुख्तसिब ज़फ़रुल हक हिजाज़ी ने कहा है कि टैक्स पेयर्स के हुकूक का हर मुमकिन तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर उस्मान शौकत और ग्रुप लीडर सुहेल अल्ताफ़ ने कहा कि FTO ऑफिस पर बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बढ़ा है। हुकूमत पंजाब ने चिन्योट की 1022 मस्जिदों के इमाम साहिबान को एजाज़िया कार्ड्स जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब उलमा एजाज़िया कार्ड देने की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी हॉल में हुई, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से इमाम साहिबान को कार्ड दिए गए। तफसील बता रहे हैं मलिक मोहम्मद अली। जिला चिन्योट की 1022 मस्जिदें वज़ीर आला पंजाब उलमा एजाज़िया कार्ड के लिए रजिस्टर्ड हुई हैं। जिला भर की रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जारी करदा उलमा एजाज़िया कार्ड देने की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी हॉल में हुई, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इमाम साहिबान को कार्ड दिए गए। अच्छा काम किया, 78 साल हो गए पाकिस्तान बनने को, आज तक किसी ने नहीं सोचा। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने ये अच्छा इकदाम उठाया है, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत पंजाब का एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे उलमा की एक अच्छी माली मुआवनत होगी और ये आसानी के साथ उन्होंने बड़े इज़्ज़त इकराम के साथ दिया। इस पर मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। उलमा की तरफ, आइमा हज़रात की तरफ ये उन्होंने रुख किया है, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दें। तकरीब में जिला भर के 875 इमाम साहिबान को उलमा एजाज़िया कार्ड दिए गए। उलमा एजाज़िया कार्ड के जरिए हर इमाम मस्जिद को पंजाब की हुकूमत 25,000 रुपए माहाना एजाज़िया दे रही है। हुकूमत पंजाब की तरफ से इमाम साहिबान की खिदमात के इतराफ़ में वज़ीर आला एजाज़िया कार्ड प्रोग्राम का आगाज एक काबिल तहसीन इक़दाम है। मलक मोहम्मद अली, पाकिस्तान टेलीन्यूज़, चिन्योट। सदारती एवॉर्ड याफ्ता गुलकारा सुरैया मुल्तानीकर की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से मोहम्मद शफीक आदिल।
हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज़ हासिल करने वाली नामवर गुलकारा सुरैया मुल्तानीकर का ताल्लुक शहर ओलिया मुल्तान से है। 1940 में तारीखी और सकाफती विरसे के अमीन शहर में पैदा होने वाली इस सुरीली आवाज़ ने रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मुनफरिद गायकी से नुमाया मुकाम हासिल किया। हमारे अपने मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया। मेरे बच्चे, मैं तो काम सी लड़की थी, तो मेरे उस्ताद ने, अल्लाह ने, मेरे मुर्शिद ने और मेरे मुल्तान के पीरों फकीरों की मदद मेरे साथ शामिल थी। मैडम सुरैया मुल्तानीकर की फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उनकी रिहाइश गाह के बाहर लोहे एजाज़ नस्ब करने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान, अदबी व फ़नी शख्सियात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फ़नून लतीफ़ा में उनकी गिरां कदर खिदमात को सराहा। उनकी शख्सियत से सब वाकिफ़ हैं। उनकी मौसीकी के लिए क्या खिदमात हैं, मुख्तलिफ़ फ़नून में उनकी क्या खिदमात हैं। ये मुल्तान की सिर्फ पहचान नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाज़ हैं। खित्ते के लिखारियों के, आर्टिस्टों के पजीराई है। उनको ऑनर देने के लिए यहाँ हम सारे इकट्ठे हैं और मैं गवर्नमेंट की बेपनाह मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे लिए आज का ये इवेंट रखा। और अपनी सोसाइटी में जब तक आर्ट और कल्चर जिंदा रहता है, कौमें भी जिंदा रहती हैं। तकरीब से खिताब में मुकर्रिरीन का कहना था कि गुलकारा ने अपनी मेहनत, लगन और मुसलसल रियाजत से मौसीकी की मुख्तलिफ असनाफ में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनकी साहबजादी राहत मुल्तानीकर अंग्रेज़ी अदब की उस्ताद होने के साथ साथ अपनी वालदा की तरह गायकी में तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुकी हैं। मोहम्मद शफीक आदिल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान।